COVID-19, and manufacturing, mining and construction sector shrank between 9 and 13%. That's the projection by the government. An interesting story there. Elon Musk, the entrepreneur behind Tesla Inc. and SpaceX, is now the richest person on the planet. A 4.8% rally in the electric car maker share priced on Thursday boosted Musk's past Amazon.com Inc. founder Jeff Bezos on the Bloomberg Billionaire Index, a ranking of the world's 500 wealthiest people. Tesla CEO Elon Musk has suggested that users should switch to Signal app in a tweet directed against WhatsApp. This tweet comes after WhatsApp announced a revision to its privacy policy, signaling further integration with Facebook over data sharing. So that's all in the Business Prime. For more news and updates, let's go back to Sakal. Thank you so much, Ajay, for joining us. And now let's move on and get you some more news and updates. Well, diplomatic advisor to the President of France, Emmanuel Bon, today called on Prime Minister Narendra Modi in New Delhi. Both the leaders discussed wide-ranging bilateral and global issues during the meeting. And as we stay with these visuals, let me quickly go across to my colleague Abhishek to fill in us with more details. Abhishek, over to you. The issues that were discussed today. Okay, so second, we know that the French NSA is visiting India. He's met NSA Doval, and he's also met senior officials, and now he's also met Prime Minister of India. So we know that India and France has been closely collaborating on various issues, including issues related to strategic cooperation, defense, space, science and technology, green energy, and environment and other technologies. And we have seen so many high-level visits happening between Indian and France leaders and officials in the recent times. And this is in that direction only, that is that how India and France are collaborating on such issues of importance. For today's meeting, so far we have seen that there is this release by Amir which says that there has been discussion on all sort of issues that concern bilateral and mutual issues between India and France. When we talk about bilateral issues, we have seen that recently India and France defense cooperation have surged. Recently, Rafale, which is a French-made fighter jet, which was recently introduced in the Indian Army, Indian Air Force, that whole ceremony has happened recently. India is also trying to buy more transport aircraft from France, which could be a deal which can go up to $2.5 billion. Besides that, there are Scorpion class submarines and other high-tech grade equipment and armaments which India and France are working closely on. France is also working on technology transfer to some of high-end technology solutions for Indian Army and Indian forces. Besides, we have also seen how India and France has been one of the co-founders of International Solar Alliance, when Indian Prime Minister and French President jointly inaugurated this international alliance, where now most of the world's countries, eminent countries, have become part of. So this also tells the leadership, the joint leadership of India and France in the area of green and sustainable technology. Okay. Recently, we have also seen that France, which has a very state-of-the-art mechanism and other equipment and expertise in order to send people in space and maintain all those technological advancement and expertise. So India, while planning, sent a team of astronauts through Gaganyaan. So there has been collaboration in that sector also, where French space scientists and space experts in medical and engineering wings have been collaborating with Indian doctors and Indian engineers, so that mission, that ambitious mission of India's space adventure can be fulfilled.
So these have been the recent development in between India and France. All right, Abhishek, thank you very much for filling us with those details. And now let's move on and take a look. All right, let's take a look at what is making news across the globe in Midday Prime. Well, India will be chairing 3 key subsidiary bodies of United Nations Security Council. The United Nations has nominated India to chair these 3 committees, namely Taliban Sanctions Committee, Counter-Terrorism Committee for 2022 and Libya Sanctions Committee. Now, these 3 committees are established subsidiary bodies on specific issues, including on the sanctions regimes. India's permanent representative to UN has expressed gratitude on the occasion, also informing about the relevance of India chairing these committees at this juncture. The Taliban Sanctions Committee, also called the 1988 Sanctions Committee, has always been a high priority for India, keeping in mind our strong interest and commitment. We'll revisit that story. Meanwhile, let's take you live to Dehradun in Uttar Pradesh, where Speaker Shri Om Birla is addressing this press conference. चलाने के लिए कैसे एक एसओपी बने, एक मापदंड तय हो, ताकि इन सदनों के अंदर भी जो चुनकर भेजे जनता जनप्रतिनिधि वो जवाबदेही के साथ काम कर सके, क्योंकि उत्तराखंड प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि छोटे छोटे गांव हैं, पंचायतों का क्षेत्रफल भी फैला हुआ है, विशेष रूप से पहाड़ी इलाकों के अंदर। उन क्षेत्र के अंदर एक चुनौती निश्चित रूप से है ग्राम पंचायत के प्रधान पे, क्षेत्रीय पंचायत के सदस्य पर, जिला पंचायत के सदस्य पे। वे इन ग्राम पंचायत के माध्यम से, क्षेत्रीय पंचायतों के माध्यम, जिला पंचायत के माध्यम से कैसे जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरी कर सके, कैसे कार्यपालिका इन चुनी संस्थाओं के प्रति जवाब दे रहे, जो मुद्दे वहां पर जो लोग उठाते हैं उसको कार्यपालिका ठीक से एग्जीक्यूट करे, इन इलाकों के अंदर विकास के एजेंडा प्लान बने, उसमें जनभागीदारी हो। इसलिए ग्राम सभा का आयोजन में अधिकतम गांव के लोग आए, क्योंकि हमारी लोकतांत्रिक परंपराएं वैदिक काल से है। हमारे गांव के अंदर जो शासन व्यवस्था है, शासन कोई नियंत्रण नहीं करता था, उस समय भी गांव वाले अपनी सभाएं समिति के माध्यम से निर्णय करते थे, गांव वाले उस निर्णय को मानते थे। तो हमारी लोकतंत्र हमारे जीवन पद्धति के अंदर है, क्योंकि आजादी के बाद हमने इन सभी संवैधानिक संस्थाओं को संविधान में प्रदत्त अधिकार भी दिए हैं, ताकि ये संस्थाएं सब जवाबदेही से काम कर सके। इसके लिए कैसे ग्राम सभा हो, कैसे ग्राम पंचायत की कार्रवाई हो, कैसे क्षेत्रीय पंचायत हो, कैसे जिला पंचायत हो, इसके लिए हमने आज एक अलग अलग सभी लोग अपने अपने अनुभव विचारों को साझा करेंगे और एक अच्छी परंपराएं डाल सके, इसके लिए एक शुरुआत है। हमारी राज्य की विधानसभाएं हर राज्य में अपनी अपनी चुनी लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त मजबूत करने के लिए मार्गदर्शन की भूमिका निभाएगा। हम एक व्यापक अभियान भी चलाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार केवड़िया में कहा था, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन,
संविधान को जानो। वो अभियान विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, देश का हर व्यक्ति संविधान के अधिकार तो जानता है लेकिन दायित्वों को भी जाने। इसके लिए भी हम व्यापक अभियान चलाएंगे। हम चाहते हैं कि ये जो चुनी हुई संस्था हैं, इनमें जो माननीय सदस्य होते हैं, जो सदस्य अपने अनुभव के आधार पर अच्छा काम करते हैं, अपने अपने क्षेत्र में उनको सम्मानित किया जाए। पिछली बार इसी उत्तराखंड की धरती पर हमने निर्णय किया था कि राज्य की विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार दिया जाए। अधिकतर राज्य विधानसभाएं ने यह निर्णय किया है कि वो अपने अपने राज्य में एक कमेटी बनाकर सर्वश्रेष्ठ विधायकों को सम्मानित करेगी ताकि अन्य विधायक उनसे प्रेरणा लें। पिछली बार हमने फैसला किया था कि सदन के अंदर, सदन में व्यवधान न हो, सुचारू रूप से सदन चले, हंगामे की प्रवृत्ति वो कम किया जाए। इसके लिए भी कमेटी बनी थी, वो भी कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। दल बदल कानून के मामले के अंदर भी हमने कमेटी बनाई थी, वो कमेटी भी अपनी रिपोर्ट देगी। दल बदल कानून के अंदर क्या संशोधन होने चाहिए ताकि देश की निष्पक्षता बनी रहे। इन सारे मुद्दों पर चर्चा पिछली बार भी हुई थी। हमारी कोशिश है कि लोकतंत्र में चर्चा संवाद से ही परिणाम निकलता है, और ये हमने उत्तराखंड में शुरुआत की है। और आज जिस उत्साह के साथ पंचायत राज के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, मुझे लगता है कि यहाँ एक अच्छे अनुभव, विचार उनके साझे होंगे। जो ग्राम पंचायत ने अच्छे नवाचार किए होंगे, किस तरीके से ग्राम पंचायत आत्मनिर्भर भारत का मॉडल बने, वहाँ की उत्पादित वस्तुओं को वैल्यू एडिशन कर देश या विश्व के बाजार में बेच सके ताकि हम गांव के लोगों को यहाँ रोजगार दे सकें। इसके लिए भी यहाँ पर चर्चा होगी। ऐसे कई मुद्दों पर आपस में चर्चा संवाद होगी। फिर देश भर के सभी जिला पंचायत के अध्यक्षों का सम्मेलन हम दिल्ली में आयोजित करेंगे। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के सम्मेलन भी दिल्ली में आयोजित करेंगे। जब ये राज्यों के अंदर एक मोटा मोटा स्वरूप तय होगा तो हम दिल्ली के अंदर एक व्यापक रूप से 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित कर इन संस्थाओं को और मजबूत और जवाबदेही बनाने का काम करें। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपका हमेशा सहयोग रहता है, क्योंकि आप भी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक स्तंभ के रूप में काम करते हैं। और सभी संस्थाएं पारदर्शी रहे, इसके लिए आपका प्रयास भी सराहनीय रहता है। इसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। कोई प्रश्न है आपके? अध्यक्ष जी, आपने एक बात का जिक्र किया है कि जो पंचायतें होंगी उच्च सदन के जैसे ही भी उनका चर्चा होनी चाहिए। Live visuals of Honorable Speaker Om Birla speaking at a function in Dehradun while inaugurating the Outreach and Familiarization Program for Panchayati Raj institutions. He talked about the importance of strengthening Panchayati Raj institutions across the country and how that actually empowers rural India. He also in fact said that India's democracy is very strong and one of the most empowered democracies across the world. And on that note, it's time to wrap up this edition of Midday Prime. Rajni will be joining you next with news. Namaskar.
As the day unfolds and news and events take shape, we get you complete coverage of every news breaking in, tracking new developments as they happen. Midday Prime English, Monday to Friday, 2 p.m. on DD News and DD India. हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। तैंतीस राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 736 जिलों में कोविड वैक्सीन के ड्राई रन का दूसरा चरण जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चेन्नई में हो रहे ड्राई रन का लिया जायजा। भारत की ओर से कम समय में वैक्सीन विकसित करने पर जताई खुशी। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 8वें दौर की वार्ता शुरू। सरकार की ओर से लगातार किसानों की ओर से आपत्ति वाले मुद्दों को सुलझाने का आश्वासन। ब्रिटेन से हवाई सेवा आज से बहाल। एयर इंडिया का विमान यात्रियों को लेकर दिल्ली पहुंचा। कोरोना के नए स्ट्रेन के चलते पिछले महीने ब्रिटेन की फ्लाइट्स पर लगी थी रोक। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 3 प्रमुख सहायक निकायों की करेगा अध्यक्षता। निकायों में तालिबान प्रतिबंध समिति, आतंकवाद रोधी समिति 2022 के लिए और लीबिया प्रतिबंध समिति शामिल। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर जारी किया वीडियो। सत्ता के सुचारू और व्यवस्थित हस्तांतरण को बताया अपनी प्राथमिकता। कहा, संघर्षपूर्ण चुनावी मुकाबले के बाद अब लोगों के गुस्से को शांत करने का समय। और सिडनी टेस्ट में टीम इंडिया की वापसी। दूसरे दिन 2 विकेट पर बनाए 96 रन। शुभमन गिल ने जड़ा अर्धशतक। रविंद्र जडेजा की घातक गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 338 पर रोका। नमस्कार, समाचार विस्तार से।
देश भर के कुल 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन का दूसरा चरण जारी है। ये ड्राई रन 736 जिलों में एक साथ किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन चेन्नई में हैं और वहां तमाम ड्राई रन सेंटर्स का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में वे सबसे पहले आज सुबह गवर्नमेंट जनरल अस्पताल का दौरा करने पहुंचे और यहां हो रहे ड्राई रन के अभ्यास का जायजा लिया। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने उमंदुरार स्थित एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का भी दौरा किया। डॉक्टर हर्षवर्धन आज चेंगलपट्टू स्थित हिंदुस्तान बायोटेक लिमिटेड के कैंपस का भी दौरा करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीनेशन से जुड़े तमाम सवालों का जवाब दिया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बात की खुशी जताई है कि भारत एक ऐसा देश बन गया है जिसने बेहद कम समय में कोविड का वैक्सीन तैयार कर लिया है। In the shortest possible time, India has also done extremely well on the front of the development of vaccine. And right now, 2 of our vaccines have been given emergency use authorization. And we are in the process of ensuring that in the next few days or so, in the near future, we should be able to give these vaccines to our countrymen, starting with, of course, prioritizing those who are most at risk. I know that a couple of months back, this Chennai was itself in a lot of trouble. All through we were worried about many states. Of course, Tamil Nadu was also one of them. But the way things were done in such a good manner in Tamil Nadu, and I was particularly impressed by the fact that 100% tests in Tamil Nadu were done by RT-PCR, and meticulous planning about testing, tracing, management, treatment, and while being treated in the hospital, so many good things have been happening. पंजाब के मोहाली में कोविड टीकाकरण के संचालन के लिए आज दूसरा ड्राई रन आयोजित किया गया। नोडल अधिकारी डॉक्टर संदीप ने कहा है कि प्रशासन द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार 25 स्वयंसेवकों के साथ वैक्सीन ड्राई रन का आयोजन किया गया। As per the government of India की गाइडलाइंस we are trying a dry run in our district first time. तो इसके लिए हमें जो ऊपर से एज पर ऑर्डर्स ऑफ सिविल सर्जन एडमिनिस्ट्रेशन हमने अपने 25 बेनिफिशियरी पहले से किए हुए हैं। उसके लिए हमने वी हैव एज पर द गाइडलाइंस अपने 3 रूम रखे हुए हैं। फर्स्ट इज वेटिंग रूम, वैक्सीनेशन रूम एंड ऑब्जर्वेशन रूम। तो अभी तक तो रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा आ रहा है। और दिल्ली में कोविड-19 टीकाकरण के लिए दूसरा ड्राई रन राष्ट्रीय राजधानी के कई जिलों में किया जा रहा है। इन जिलों में दक्षिण दिल्ली, दक्षिण पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली और नई दिल्ली शामिल हैं। दक्षिण दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में ड्राई रन समाप्त हो चुका है। और देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों सहित असम की राजधानी गुवाहाटी में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो गया है। गुवाहाटी में कोविड-19 टीकाकरण का काम गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ड्राई रन के जरिए किया जा रहा है। और एक तरफ देश कोरोना की वैक्सीन के लिए पूरी तरह से तैयार है, वहीं कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से लगातार बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 1,37,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.39% हो गई है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.45% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 20,539 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया कि देश में 7 जनवरी तक कुल 17,93,36,364 नमूनों का परीक्षण किया गया, जिनमें से 7 जनवरी को 9,35,369 नमूनों की जांच हुई। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। लश्कर तैयबा के ज़कीरुर रहमान लखवी को 15 साल की सजा पाकिस्तान की एक अदालत ने सुनाई है। तो बड़ी खबर है जो पाकिस्तान से आ रही है। लश्कर तैयबा संगठन के ज़कीरुर रहमान लखवी को 15 साल की सजा
सुनाई गई है। पाकिस्तान की अदालत ने आज ये फैसला सुनाया है। लश्कर तैयबा के संगठन से जुड़े थे और पाकिस्तान की अदालत ने ये फैसला सुनाया है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अभिषेक जुड़ रहे हैं। अभिषेक, बड़ी खबर है पाकिस्तान से लश्कर तैयबा के इस कहें सरगना को गिरफ्तार किया गया है, उसको फैसला सुनाया है अदालत ने। आतंक को रोकने के लिए चौतरफा दबाव है पाकिस्तान के ऊपर दुनिया भर से, उसी का नतीजा क्या दिख रहा है? देखिए रजनी, निश्चित रूप से पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा दबाव है, सिर्फ इस बात का नहीं कि वो आतंकियों पर कार्रवाई करे, बल्कि इस बात का भी कि वो FATF की जो आने वाली बैठक है उससे पहले वो कोई सब्सटैंशियल काम करके दिखाए पाकिस्तान FATF के लोगों को कि आप आतंकवाद और आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा रहे हैं। ये जो मौजूदा कदम है ज़कीर रहमान लखवी का गिरफ्तारी का, 4 दिन पहले उसे गिरफ्तार किया गया था, फिर उसे वहां के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो पंजाब राज्य पाकिस्तान की उसने उस पर मुकदमा चलाया और कोर्ट ने उसे सजा दी है। अभी जो खबरें आ रही है उसमें उसे 15 साल तक सजा देने की खबर आ रही है। लेकिन इससे पहले भी आपको बता दें कि ज़कीर रहमान के लिए पहली बार नहीं है कि उसे जेल की हवा खानी पड़ी है। इससे पहले भी साल 2015 में उसे गिरफ्तार किया गया था। उससे पहले भी वो पाकिस्तान में जब मुंबई हमले हुए थे भारत में, उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। लेकिन पाकिस्तान ने उसके खिलाफ कोई सब्सटैंशियल एक्शन अभी तक नहीं लिया है। ये सारे जो एक्शंस हैं वो एक लीपापोती का प्रयास होता है पाकिस्तान का, वो दिखाने के लिए दुनिया को कि वो आतंकवादियों को की धरपकड़ और उनकी एक्टिविटीज को कम करने की कोशिश कर रहा है। हमें देखना ये होगा कि अगर ज़कीर रहमान को 15 साल की सजा हुई है तो क्या वो सजा भुगतेगा जेल में या नहीं। दूसरी अहम बात कि ज़कीर रहमान लखवी को जो ये सजा हुई है वो सजा हुई है पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में या टेरर फाइनेंसिंग के केसेस में। ये वो सजा नहीं है, ये उसे पाकिस्तान में मुंबई हमले के लिए नहीं ठहराया गया है। उसे किसी भी तरीके से जो भारतीय सरकार की जो ग्रीवेंसेस हैं, भारतीय सरकार की जो चिंताएं हैं उसको उसमें एड्रेस नहीं किया गया। वो पाकिस्तान की सरकार ने कहा है कि वो टेररिज्म से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है और इसीलिए उस पर कार्रवाई की गई है। तो भारत की जो अभी चिंता है कि मुंबई हमलों के जो अभियुक्त हैं, जो सरगना है, उनको किसी भी तरीके से उन पर कार्रवाई हो, उनको सजा हो, वो चिंता इस पूरे प्रोसेस में अभी भी एड्रेस नहीं हो रही है। बिल्कुल अभिषेक, ये वही नाम है जो मुंबई आतंकी हमले में शामिल रहा है। भारत ने पूरे सबूत भी दिए हैं, लेकिन इस सजा का उस घटना से कोई संबंध नहीं है और ये मीडिया फंड, ये जो है वो मनी फंडिंग से जुड़ा मामला है। टेरर फंडिंग के आरोप में उन्हें ये गिरफ्तार किया गया था और उसी से जुड़ी हुई ये सजा है। रजनी, और ये भी है कि पाकिस्तान ने ये फरवरी में जब FATF जो दुनिया की सबसे बड़ी वॉचडॉग है मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म की एक्टिविटी या कोई भी ऑर्गेनाइज क्राइम जो होता है उससे जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के हिसाब से वो कंट्रीज को रेट करती हैं। पाकिस्तान उनकी रेटिंग के हिसाब से अभी ग्रे लिस्ट में है और बहुत संभव है कि अगर उनके एक्शंस या जो भी उन्हें लिस्ट ऑफ वर्क दिए गए थे कि आप 4 महीने के अंदर ये सब काम करें ताकि आपको अगली सुनवाई के दौरान आपकी जो लिस्टिंग है उसको हम पॉजिटिव कर पाएं, अगर वो पाकिस्तान उन्हें जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा और किसी भी तरीके से उन्हें समझाने में नाकामयाब रहता है तो बहुत मुमकिन है कि उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए पाकिस्तान को। और ब्लैक लिस्ट करने के बाद पाकिस्तान के सामने बहुत बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो संस्थाएं हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उससे पाकिस्तान को फंडिंग नहीं मिल पाएगी। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के लिए ये जरूरी है कि दुनिया को, FATF को वो ये लगातार बताए कि उसकी मंशा सही है, उसके एक्शन सही हैं और वो आतंकवादियों और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। ये अपने आप में अजीब इत्तेफाक है रजनी की ये आतंकवादी लगातार इतने सालों से पाकिस्तान में रहता रहा है। यूएन ने इसे प्रोस्क्राइब किया, यूएन के प्रोहिबिटेड लिस्ट में है, बावजूद इसके पाकिस्तान में ये रह रहा है, खुलेआम घूम रहा है। 4 दिन पहले इसे गिरफ्तार किया जाता है एक दवा की दुकान के पास से और 4 दिन में कोर्ट में जी अभिषेक से 15 साल की सजा हो जाती है। बिल्कुल। अपने आप में एक तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दिख रहा है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की कार्रवाई से बचने के लिए, ब्लैकलिस्ट किए जाने से बचने के लिए पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं ये कदम उठाया है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
और आगे बढ़ते हैं। कृषि कानून को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच गतिरोध दूर करने के लिए 8वें दौर की वार्ता समाप्त हो गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उम्मीद जताई कि वार्ता सकारात्मक माहौल में हुई और इसका समाधान निकलेगा। चर्चा के दौरान हर पक्ष को एक समाधान तक पहुंचने के लिए कदम उठाने होंगे। गौरतलब है कि इससे पूर्व की वार्ताओं में किसान संगठनों और कई सरकारों के बीच कई मुद्दों पर आम सहमति बन गई थी। और फ्रांस के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार इमैनुअल बोने ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की गई। और देश भर में 1 साल से भी कम अवधि में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत ग्रामीण परिवारों को 3 करोड़ 4 लाख नए कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा के बाद ये जानकारी दी। मंत्रालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि आजादी के बाद से अगस्त 2019 तक कुल 18.93 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से कुल 3.23 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास नल के पानी का कनेक्शन था, जबकि 1 साल से भी कम अवधि में इस मिशन के तहत 3 करोड़ से भी अधिक परिवारों को नल के पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। जल शक्ति राज्य मंत्री ने बताया कि गोवा 100% पाइप कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य है। अभी तक 27 जिलों, 458 ब्लॉक, 33,516 ग्राम पंचायतों, 66,210 गांवों को हर घर जल लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की गई है। हाल ही में इस लक्ष्य को प्राप्त करने वाला कुरुक्षेत्र देश का 27वां और हरियाणा का 3रा जिला हो गया है। तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, केंद्र शासित पुदुचेरी 100% कवरेज हासिल करने के निकट हैं। कवरेज बढ़ाने में प्रगति करने वाले राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मणिपुर, मिजोरम और केंद्र शासित अंडमान और निकोबार। भविष्य के रोड मैप के लिए 2 राज्य बिहार, तेलंगाना और 2 केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वारा 2021 में 100% कवरेज हासिल किए जाने का अनुमान है। उल्लेखनीय है कि जल जीवन मिशन ने कोई व्यक्ति न छूटे का दृष्टिकोण अपनाते हुए हर ग्रामीण परिवार को पाइप जल कनेक्शन देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। और इसी मुद्दे पर प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय मंत्री ने एक महत्वपूर्ण ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा कि हर घर जल राज्य बनने का गौरव प्राप्त करने पर उन्होंने बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अपनी जल क्रांति जल जीवन मिशन के तहत 3 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल का जल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। गोवा में ग्रामीण परिवारों को 100% पाइप जल कनेक्शन प्रदान करने वाला यह पहला राज्य बन गया है। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 बढ़ो। कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। बढ़ो 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 मेरे संग। ब्रेक के बाद स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि पूरी दुनिया में आज हिंदी भाषा की व्यापकता है और हिंदी का शब्दकोश सभी भाषाओं से अधिक व्यापक है। आज वर्धा स्थित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने छात्रों से आह्वान किया कि वे पूरी दुनिया में हिंदी के वैभव को विकसित करने की दिशा में काम करें। उस कानून की शिक्षा भी विभिन्न हमारी भारतीय भाषाओं में होना चाहिए और हमारे देश के जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी भी इच्छा है और हमने आगे ये योजना बनाई है कि निश्चित रूप में जहां हम इंजीनियरिंग की शिक्षा, जहां हम डॉक्टरी की शिक्षा अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में, अपनी मातृभाषा में, अपने देश की वो भारतीय भाषाओं में करेंगे, वहां हम कानून की शिक्षा को भी भारतीय भाषाओं में करने के लिए सक्षम हो सकेंगे। आज पूरी दुनिया में हिंदी का व्यापकता है। हिंदी में जो शब्दकोश है, मुझे लगता है दुनिया में कोई भाषा ऐसी नहीं है जिसमें इतना बड़ा शब्दकोश हो
और हमारे देश की आजादी के बाद हमारे संविधान की अनुसूची में जो चीजें हमको दी गई, भाषा, संघ की भाषा में इसे याद दिलाना चाहता हूँ आपको पूरी दुनिया में हिंदी के वैभव को विकसित करना है, दिशाओं में जाना है, क्योंकि हिंदी के ब्रांड एम्बेसडर बनकर के आप बाहर निकलेंगे, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, आप किसी भी व्यवसाय में होंगे, लेकिन हिंदी के लिए आपकी समर्पितता चाहिए। हिंदी तमाम विधाओं को लेकर के और सशक्त माध्यम से जितना स्थान पूरी दुनिया में बना सकती है, शायद ही कोई भाषा हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को सीएसडी कैंटीन की वस्तुओं की खरीद के लिए ऑनलाइन पोर्टल https://afdcsdiindia.gov.in लॉन्च किया। इस ऑनलाइन पोर्टल से सशस्त्र बलों के सेवारत और सेवानिवृत्त लगभग 45 लाख सीएसडी लाभार्थियों को फायदा होगा और वे एएफडीआई आइटम जैसे कार, मोटरसाइकिल, वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज की खरीदारी ऑनलाइन कर सकेंगे। इस पोर्टल के शुभारंभ की सराहना करते हुए रक्षा मंत्री ने सभी जवानों और सशस्त्र बलों के अधिकारियों और दिग्गजों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता जाहिर की। समारोह में कार और मोटरसाइकिल की डिलीवरी की लाइव स्ट्रीमिंग मुंबई, नई दिल्ली, अहमदाबाद और जयपुर से उन लोगों के लिए की गई थी जिन्होंने इस पोर्टल के ट्रायल रन के दौरान उन्हें बुक किया था। समारोह में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल करमबीर सिंह, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया और डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार सहित रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। और दिल्ली कैंट में चल रहे एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर में इस बार देश भर से केवल 1000 कैडेट्स ही हिस्सा ले रहे हैं। इनमें से कुछ कैडेट्स को जहां राजपथ परेड में शामिल होने का मौका मिलेगा, तो वहीं कैडेट्स एनसीसी की प्रधानमंत्री रैली का भी हिस्सा बनेंगे। किस तरह की हैं तैयारियां और कैडेट कहां-कहां ले सकेंगे हिस्सा, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच से। एनसीसी का गणतंत्र दिवस शिविर 2021 शुरू हो चुका है। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच। सर, इस बार कुल कितने कैडेट इस शिविर में हिस्सा ले रहे हैं? अक्सर हमारी पार्टिसिपेशन में 2155 कैडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ये कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से थोड़ा स्केल डाउन किया गया है, तो इस बार हमारे 1000 कैडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें कितने छात्र और कितने छात्रा कैडेट हैं? 1000 की जो रिप्रेजेंटेशन है, हमारे सारे 17 डायरेक्टरेट्स मतलब मिला के 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो गर्ल कैडेट्स है 380 हैं और बैलेंस जो है बॉय कैडेट्स है। राजपथ पर हमेशा एक छात्र एक छात्रा कैडेटों का दल और इसके अलावा बैंड भी होता है। इस बार क्या देखने को मिलेगा राजपथ? बिल्कुल आपको मिलेगा देखने के लिए, लेकिन जैसे मैंने बताया है ये पैंडेमिक की वजह से जो है स्ट्रेंथों को जो है जोड़ दिया गया है। बॉयज़ एंड गर्ल्स को इकट्ठा मार्च किया जाएगा और वहाँ पे 100 लड़के और 100 गर्ल स्टूडेंट्स दोनों का एक सेम कंटिंजेंट बनाया जाएगा। इस बार जो है बैंड के ऊपर रिस्ट्रिक्शन दी गई है, क्योंकि वो बताया गया है कि 18 साल के नीचे जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे हेल्थ के वजह से, कोविड की वजह से। इसी वजह से हमारे एनसीसी बैंड नहीं होंगे, लेकिन हमारा जो है आर्मी बैंड जो वहाँ पे हमें पाइप्स एंड ब्रास जो बैंड हो उनके साथ हमारे कैडेट्स मार्च करेंगे। क्या इस बार भी प्रधानमंत्री रैली होगी? बिल्कुल होगी। वीएम रैली है 28 जनवरी को है और यहाँ पे हमारे करियप्पा परेड ग्राउंड में होगी। लेकिन इस बार अगेन एज ए मेंशन कि कोविड-19 की वजह से थोड़े से जो है कुछ चीज़ें जो है नहीं दिखाई जाएंगे, लेकिन रैली 100% होगी। मार्चिंग कंटेंशंस होगी, कल्चरल प्रोग्राम होएगा और सब कुछ होगा जैसे होता है, लेकिन थोड़ा स्केल डाउन किया जाएगा। तो ये थे लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच जो बता रहे थे कि एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर में इस बार 1000 कैडेट हिस्सा ले रहे हैं जो देश भर से यहाँ पहुँचे हैं। कैमरामैन जयशंकर के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और ब्रिटेन से भारत के लिए फ्लाइट आज से फिर बहाल हो गई है। 246 यात्रियों को लेकर एयर इंडिया की पहली फ्लाइट अब से कुछ देर पहले नई दिल्ली पहुंची। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिलने के बाद भारत सरकार ने ब्रिटेन की सभी फ्लाइट्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। केंद्र सरकार ने 23 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के लिए ब्रिटेन की सभी फ्लाइट्स के संचालन पर रोक लगा दी थी। इसके बाद इस प्रतिबंध को 7 जनवरी तक बढ़ा दिया गया था। ब्रिटेन से भारत आने वाले यात्रियों के लिए सरकार ने कुछ गाइडलाइंस भी जारी की हैं, जिसका सभी को पालन करना जरूरी होगा।
और जो गाइडलाइंस है उनके मुताबिक ब्रिटेन से भारत आने वाले हर व्यक्ति के लिए कोरोना नेगेटिव टेस्ट की रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। एयरलाइंस के स्टाफ को भी उड़ान भरने से पहले अपना कोविड-19 टेस्ट कराना होगा। भारत आने पर यात्रियों को खुद अपने भुगतान पर RT-PCR टेस्ट कराना होगा। यात्रियों की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर भी उन्हें 14 दिनों के लिए घर पर ही क्वारंटीन रहना होगा। ये SOPs 31 जनवरी तक लागू रहेंगी। इसके तहत सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को अपने 14 दिनों की ट्रैवल हिस्ट्री भी दिखानी होगी। निर्देश के मुताबिक ब्रिटेन से भारत आने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा शुरू होने से 72 घंटे पहले ऑनलाइन पोर्टल पर अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करना होगा। जिन यात्रियों को कोरोना संक्रमित पाया जाएगा उन्हें राज्य स्वास्थ्य विभाग के हवाले कर दिया जाएगा। उनके नमूनों को आगे की जांच के लिए जेनोमिक्स कंसोर्टियम लैब्स में भेजा जाएगा। अगर जांच में पाया गया कि यात्री नए कोरोना वायरस स्ट्रेन से संक्रमित हैं तो उसे अलग कमरे में रखा जाएगा और उसका इलाज तब तक चलता रहेगा जब तक कि वह कोरोना नेगेटिव नहीं हो जाता है। और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने न्याय विभाग के लिए प्रमुख नामांकन की घोषणा की। नामांकित लोगों में भारतीय अमेरिकी वनिता गुप्ता भी शामिल हैं, जिन्हें एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित किया गया है। बाइडेन ने ट्वीट कर कहा कि न्याय विभाग के लिए हमारे नामित व्यक्ति विभाग की स्वतंत्रता को बहाल करेंगे। वे लोगों के हितों में काम करेंगे, न कि राष्ट्रपति पद के लिए। वे विधि नियम में जनता के विश्वास का पुनर्निर्माण करेंगे और एक अधिक निष्पक्ष और न्याय संगत न्याय प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे। रुक करते हैं खेल की दुनिया का। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर भारत ने अपनी पहली पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 96 रन बना लिए थे। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने भारत को अच्छी शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 70 रन जोड़े। रोहित 26 रन बनाकर हेजलवुड का शिकार बने, वहीं शुभमन गिल पहला टेस्ट अर्धशतक लगाने में कामयाब रहे। गिल 50 रन बनाकर कमिंस का शिकार बने। दिन का खेल खत्म होने तक पुजारा 9 और कप्तान अजिंक्य रहाणे 5 रन बनाकर नाबाद थे। इससे पहले स्टीव स्मिथ की शानदार बल्लेबाजी की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 338 रन बनाए। दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट पर 166 रन से आगे खेलना शुरू किया। एक बार फिर बारिश के चलते मैच को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे मैग्नस लेबुशैन को रविंद्र जडेजा ने रहाणे के हाथों कैच कराया। लेबुशैन शतक बनाने से मात्र 9 रन से चूक गए। मैथ्यू वेड को भी जडेजा ने आउट किया। इस बीच स्टीवन स्मिथ ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने टेस्ट करियर का 27वां शतक जड़ा। पुछल्ले बल्लेबाजों में मिशेल स्टार्क ने 24 रन बनाए। रविंद्र जडेजा के शानदार थ्रो पर स्मिथ रन आउट हुए और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलियाई पारी सिमट गई। भारत की ओर से जडेजा ने सर्वाधिक 4 विकेट चटकाए। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए नई प्रौद्योगिकी के उपयोग से बनने वाले घरों की जरूरत को महसूस करते हुए देश के युवा अब आगे आने लगे हैं। पर्यावरण अनुकूल, सस्ता और टिकाऊ घर बनाने की दिशा में उनके प्रयास सराहनीय हैं। ऐसा ही एक प्रयास किया गया है प्रफुल्ल नायक के द्वारा। आइए देखते हैं गुरुग्राम से रिपोर्ट। ये तस्वीरें हरियाणा के गुरुग्राम के सोहना तहसील की हैं, जहां बना ये मकान आम मकानों या अन्य घरों से बिल्कुल अलग है। अलग इसलिए क्योंकि इसके निर्माण में अत्याधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकी का प्रयोग किया गया है। इसके अंदर का तापमान, ध्वनि प्रदूषण और पानी के प्रवेश को नियंत्रित किया जा सकता है। इस खांचे में कंक्रीट और सरियों का बहुत कम इस्तेमाल होता है। यह संरचना भूकंप और किसी प्राकृतिक आपदा से लोहा लेने में सक्षम है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए प्रधानमंत्री के आह्वान पर नई प्रौद्योगिकी के उपयोग से बनने वाले घरों की जरूरत को महसूस करते हुए इस तरीके के मकानों का निर्माण किया जा रहा है। मिट्टी से अगर आप घर बनाते थे पहले, उसको एक मशीनीकरण करके, एक आधुनिकीकरण करके हम लोग ने इस हिसाब से कर दिया है कि उसको एक आम आदमी भी, जिसको कुछ नहीं मालूम हो टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसको कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ नहीं मालूम हो, वो खुद इसको इस्तेमाल कर सकता है। इस्तेमाल करके अपना एक छोटा सा सुंदर सा घर बनाने का क्षमता रख सकता है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने आशा इंडिया यानी अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलरेटर के विजेताओं की भी घोषणा की थी। प्रफुल्ल नायक भी उन्हीं विजेताओं में से एक हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक आवास निर्माण प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता भारत के तहत 6 राज्यों में 6 स्थानों पर लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी, जिसका उद्देश्य
गरीबों को शहरों में सस्ती दरों पर आवास मुहैया करवाना है। एक फाइनेंशियल मॉडल हमने इंक्लूजन मॉडल क्रिएट किया है जो चल सकता है, और ये धीरे धीरे मेरे ख्याल से आशा अवार्ड इसीलिए कंस्टिट्यूट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से, कि ये जो टेक्निक्स है, ये जो टेक्नोलॉजीज इनोवेशंस हुई है, इसको ग्रामीण क्षेत्र में कैसे इसकी पहचान मिले, इसको कैसे इसको बढ़ावा किया जाए, ताकि जो बिल्डिंग कम्युनिटी है वो अर्बन से ग्रामीण इसलिए नहीं जाना चाह पाती है कि उनको वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की जो मार्जिन से बहुत कम रह जाती है। तो ऐसे टेक्नोलॉजीज़ को अगर ये बढ़ावा मिलता है और ऐसे टेक्नोलॉजीज जाती है ग्रामीण में, तो इसका बहुत बहुत लाभ वहाँ ग्रामीण वासियों को मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि भारत में 2022 तक हर गरीब के पास अपना मकान हो। नई तकनीकी प्रोजेक्ट में निर्माण कार्य से वक्त की बचत तो होती ही है, साथ ही लागत भी कम आती है। इसके तहत बने मकान भूकंप रोधी भी होते हैं। इस तकनीकी से बनाए गए मकान न सिर्फ मध्यम और गरीब लोगों के घर के सपने साकार करेंगे, बल्कि पर्यावरण और देश को आत्मनिर्भर बनाने में भी कारगर सिद्ध होंगे। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज, गुरुग्राम, हरियाणा। तो तकनीक बनी आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का संबल। और इस समाचार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार। You could try and read my lyrics off this paper before then, but you won't take this thing out these words. Hello everyone, my name is Sparsha. I'm a singer, songwriter, rapper, and inspirational speaker from New Jersey in the US. I have osteogenesis imperfecta, and that is a rare, incurable genetic disorder that causes a person's bones to be very fragile. I've had 130 fractures in just the first 13 years of my life. I've also had multiple screws and rods placed in my body. I'm coming out stronger at the end of my surgery than I've ever been. Not just physically, but also mentally and spiritually. And whenever I feel down, I play a song that lifts my spirits up. Watch me on Doordarshan's In Conversation With. My connection to music is a lot like two best friends who grew up together. In essence, basically, music is more than my soulmate. It is my soul. Now here I am through all the struggle, cleared my damn small the rubble, rose up from the wounds that I took, beats got so much boom, you'll be shook. Watch me on Doordarshan's In Conversation With. Read that book, cause I'm writing my pages, beats getting harder as I'm fighting these stages, moving the tears like the आसमान छूता हिमालय, दुनिया का सबसे ऊंचा मैदाने जंग, गहरी बर्फ की परतें, रूह कंपकपाती ठंड, जहां सांस लेना भी हो दूभर, मजबूत कंधे ही उठा पाए जिसकी सुरक्षा का जिम्मा। ऐसे योद्धा कहां होते हैं तैयार? जानते हैं भारत के वीरों की गाथा। भारत के जांबाज स्की ट्रूपर्स की कहानी, हिम योद्धा। The new year brings with it vaccine cheer for India. Two made in India COVID-19 vaccines approved for restricted emergency use.
What do clinical trials show about Covaxin's safety and efficacy? Will Covaxin protect, particularly against mutant strains of the virus? For an in-depth perspective, watch BioQuest, India's COVID-19 vaccine, Covaxin, only on DD India. कैसी होती है एक मरीन पायलट की जिंदगी? इससे जुड़े नमस्कार, डॉक्टर स्पीक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जी हाँ, आपका अपना कार्यक्रम जिसमें आप कोविड-19 से जुड़े कोई भी सवाल कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी आपके मन में है वो आप यहाँ पर जान सकते हैं। किसी भी तरह का भ्रम है उसका समाधान आपको मिल जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स का एक पैनल हमारे साथ जुड़ा होता है और फ़ायदा ये होता है कि आप डायरेक्ट उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो डॉक्टर्स का एक पैनल हमारे साथ रहेगा। कोविड से जुड़ी हुई और वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई कोई भी अगर जानकारी आप चाहते हैं तो आप बेशक यहाँ पर फ़ोन कर सकते हैं, बेधड़क फ़ोन कर सकते हैं, उस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबर्स पर आपको कॉल करना है। इसके अलावा सोशल मीडिया से भी आप जुड़ सकते हैं। तो डॉक्टर्स हमारे साथ रहेंगे और अंग्रेजी में मेरे साथ रहेगी मेरी सहयोगी सकल। Yes, and we will also be joined by Dr. Neeraj Nischal. He's Associate Professor Medicines AIIMS. He's going to be with us on the show. And also Dr. S.M. Raheja, Senior Physician from G.B. Pant Hospital. And as we go live to our doctors on the panel on this edition of Doctors Speak, let's also remind our viewers, next half an hour, our phone lines are going to be open. These are the numbers that we are flashing right on your screens for all your queries related to COVID-19. Dr. Neeraj Nischal, let me quickly come to you with the first question, sir. Today, in fact, it's the second phase of the dry run. There are lots of questions that people want to ask pertaining to the dry run, जो mock drill हुई है आज हो रही है देश में. Very quickly, if you could just briefly summarize the significance of this dry run, as we get more questions and callers. Yeah, so this is very important. Honorable PMS, and it's one of the largest vaccination program one can ever imagine. So while conducting such a big program, you have to ensure that whatever the problems which one can anticipate while carrying out such a large-scale vaccination program, these things are basically the idea of this dry run is to find out all those problems which might arise during this mass vaccination campaign. So this dry run will see how smoothly all the participants can be vaccinated without causing much problem. And that is the basic crux of carrying out such a large scale dry runs across the country, to ensure that all logistics are in place when we actually start vaccinating. बिल्कुल, और इसके साथ ही महत्वपूर्ण जानना ये भी हो जाता है कि जिस तरह से देश भर में एक बड़ा अभियान जिसे हम मॉक ड्रिल भी कह रहे हैं और एक टीकाकरण से पहले परीक्षण कह रहे हैं, तैयारी की समीक्षा भी इसको कह रहे हैं, कितना बड़ा आश्वासन है ये देश के लोगों के लिए, आम जनता के लिए, और किस तरह से चाहे उनके रजिस्ट्रेशन की बात हो उसका समाधान किया गया है, जो ऐप इसमें दी गई है वो किस तरह से काम कर रही है, और किस तरह से इन तैयारियों की आज समीक्षा की जा रही है, किस तरह से कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें ध्यान में रखा जा रहा है कि जब वास्तविक टीकाकरण होगा तो उसमें कौन कौन सी चीजों को खास तौर पर ध्यान में रखना होगा। देखिए, जो प्रायर रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका जो स्पेसिफिक डे दिया जाएगा उसके अनुसार आपको एक स्पेसिफिक वैक्सीनेशन सेंटर पे जाके अपना टीका लगवाना है। तो ये बहुत जरूरी है कि जो भी एलिजिबल लोग होंगे उनको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद उनको बुलाया जाएगा कि आप इस दिन इस सेंटर पे आए, ताकि बिना किसी विघ्न के, बिना किसी डिले के या बिना किसी परेशानी के आपको वो टीका लगाया जा सके। तो इस सारी चीजों को कोऑर्डिनेट करने के लिए जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज है वो कोशिश कर रही हैं कि किस वे में हम मिनिमल प्रॉब्लम्स में पड़े हुए जो भी लोग आए उनको बिना कम परेशानी के ये वैक्सीन हम दे पाए। उसमें लोग बेवजह रजिस्टर करके और बहुत बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। तो इन सब चीजों पे आप ऐसे भ्रामक ऐप्स के बारे में न पड़े और एक जेन्युइन जो ऐप है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी होगी उस पे ही आपको रजिस्टर करना होगा। Also, if you could, simplify further the various stages, Dr. Neeraj, that are involved in this dry run. There is a systematic SOP or process that is being followed.
to be very frank, being a clinician and I'm not directly involved in the steps which is being followed, so I won't be the right person to comment on that. Sorry for that. Sure, no problem, no problem. We'll be, of course, taking our callers as well. But since we are talking with the dry run, let me also, ask you these frequently asked questions about the vaccines. And before we actually get our first question, would you like to just talk about certain do's and don'ts very specifically? Because there is also this sense of complacency that is setting in. Dr. Neeraj, you would agree that now that we have vaccines, so we are 100% covered or protected. So this is very important. See, don't see vaccine as a magic bullet that once it comes and everything will go away. So this COVID appropriate behavior which we have been emphasizing again and again through this program and various other platforms, that remains to stay in place. That's most important aspect. So the COVID appropriate, when we talk about COVID appropriate behavior, it includes your hand hygiene, the cough etiquettes, wearing mask is must. You should follow these 3 steps very diligently. You should not be making any excuses that this is the reason why I'm not doing this. And just because you get vaccine, that doesn't mean you are immune to this thing. Even after getting vaccination, it's a series of 2 doses given apart at 4 weeks of interval. And after that, the adequate amount of immunity will develop. But again, no vaccine is 100% efficacious. That means there will be few people who will not be able to mount enough antibody response, and they may still remain vulnerable. And the primary idea of vaccine is to ensure that if somebody develops this infection, this does not complicate into severe disease. So these precautions needs to be in place even after taking vaccine. बिल्कुल, और हमारे साथ कॉलर भी जुड़ने शुरू हो गए हैं. हमारे साथ डॉक्टर रहेजा भी जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने जो कॉलर हैं उनसे बात कर लेते हैं. राजेश सक्सेना गुजरात से हमारे साथ जुड़े हुए हैं. जी सक्सेना जी, पूछिए अपना सवाल. Actually, I am a patient of CKD, chronic kidney disease, and having dialysis thrice a week, and due for transplantation in this month only. Shall I take COVID vaccine or not? डॉक्टर रहेजा, आप इनके सवाल का जवाब देना चाहेंगे? डॉक्टर रहेजा से शायद हम नहीं जुड़ पा रहे हैं, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है. डॉक्टर निश्चल, आप इनका जवाब देना चाहेंगे? तो जैसे इनका ट्रांसप्लांट इसी मंथ ड्यू है, तो आई एम नॉट श्योर कितनी जल्दी उनको ये वैक्सीन मिल पाएगा. एंड अगेन जैसे मैंने कहा कि सीरीज जो है वैक्सीन का 2 सेट ऑफ डोजेस लगने हैं एट 4 वीक्स अपार्ट. तो अगर इनके ट्रांसप्लांट में इतना टाइम गैप नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये वैक्सीन नहीं ले पाएंगे. क्योंकि एक बार जब वैक्सीन लगने के जो ये ट्रांसप्लांट के समय इनको इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स पे भी डाला जाएगा, तो वैक्सीन की एफिकेसी उस समय कितनी रहेगी कहना मुश्किल है. तो अगेन अपने डॉक्टर से ये बात करें, जो ट्रांसप्लांट टीम है उनसे बात करके उसके अकॉर्डिंग ये इस बारे में डिसीजन ले तो बेहतर है. बिल्कुल, तो सक्सेना जी को अपना जवाब मिल गया होगा. और डॉक्टर रहेजा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. डॉक्टर रहेजा, सबसे पहले जानना चाहेंगे, आप तक हमारी आवाज आ रही है? आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी. डॉक्टर रहेजा, एक बहुत बड़ा कदम आज जो है ड्राई रन का देश भर में, और लगातार जिस तरह से परीक्षण हो रहा है टीकाकरण का, टीकाकरण की तैयारियों को देखते हुए, कितना बड़ा इसको कदम कहा जा सकता है, कितनी बड़ी एश्योरेंस कही जा सकती है, कितनी बड़ी तैयारी की जा सकती है, और प्रगति के साथ साथ कितना बड़ा आश्वासन ये है? आवाज कंप्लीट नहीं आ रही है. आप तक हमारी आवाज नहीं आ पा रही है. डॉक्टर निश्चल, जिस तरह से लगातार हम तैयारी की बात कर रहे हैं, जिस तरह से लगातार हम आश्वासन की बात कर रहे हैं, इसके साथ ही क्वेश्चंस आते हैं. जैसे अभी हमारे एक व्यूअर का क्वेश्चन आया, इसी तरह और भी बहुत सारे सवाल जो हैं वो व्यूअर्स करते हैं वैक्सीनेशन के बारे में. जब टीकाकरण आ गया है तो इसके बारे में जाहिर सी बात है रजिस्ट्रेशन को लेकर, और जो इसके डिफरेंट स्टेजेस आते हैं उसको लेकर, और कौन कौन लोग इसको लगवा सकते हैं, और कितने % इससे श्योरिटी मिलती है, ये तमाम सवाल आते हैं. तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आप जो दर्शक हैं उन्हें किस तरह से आश्वस्त करना चाहेंगे टीकाकरण के प्रति आज की तैयारी को देखते हुए? देखिए, जब ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था, इस प्रोग्राम पे जब भी आते थे तो लोगों का ये क्वेश्चन रहता था कि वैक्सीन कब आएगी. अब जब वैक्सीन आ गई है तो लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या ये सेफ है, क्या ये वैक्सीन हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो डेफिनेटली मैं यही कहूंगा कि जो ये लोगों के मन में जो सोशल मीडिया और बाकी जो इन्फोडेमिक का एक जो अलग से पैंडेमिक चल रहा है,
उसके चलते लोगों में भ्रम पैदा की जा रही है कि ये वैक्सीन सेफ नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि कोविड-19 जानलेवा है, ये वैक्सीन जानलेवा बिल्कुल नहीं है। किसी भी वैक्सीन के अपने माइनर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि जहां इंजेक्शन लगे वहां थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है, कुछ लोगों को मामूली सा बुखार आ सकता है, बॉडी एक हो सकता है, लेकिन ये सारे सेल्फ लिमिटिंग साइड इफेक्ट्स होते हैं जो भी टाइम अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो जो लोगों के मन में ये डर है कि ये वैक्सीन सेफ नहीं है, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी रेगुलेटरी एजेंसीज इसको क्लियरेंस दे रही है, सारे सेफ्टी पैरामीटर्स को असेस करने के बाद ही क्लियरेंस दी जाती है। ऐसे ही किसी वैक्सीन को मार्केट में लॉन्च नहीं किया जा सकता। जहां तक एफिकेसी की बात है, एज लॉन्ग एज की कोई चीज बहुत ही सेफ है, अगर एफिकेसी जो अगर कोई 90% क्लेम कर रहा है उसकी जगह 60% भी है, तो आई थिंक उससे कोई बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। पेंडेमिक रोकने में बिल्कुल कारगर आएगा। तो सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वैक्सीन के बारे में जो भी डाउट्स हैं, एक वेरीफाइड सोर्स से इस डाउट्स को क्लियर करवाकर उसके बाद आप अपना वैक्सीन लेने का डिसीजन लें। ये वॉलंटरी है, किसी को जबरदस्ती नहीं लगाया जाए। जी, Dr. Nishal, just we have another caller. Anuradha is calling us from Faridabad with your question. Please, Anuradha ji, go ahead with your question. मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरे ब्रदर को 27 अक्टूबर को कोरोना हुआ था, तो 15 दिन बाद वो रिकवर हो गए। अब वो क्या कितने दिन तक वो मतलब हम लोगों से मिलजुल पाएंगे या मिल सकते हैं? ओके, डॉक्टर रहेजा। 15 अक्टूबर को हुआ है 2020 में इनको कोरोना, तो हम 17 डेज का टाइम लेते हैं, जिसके बाद कि आप मिल सकते हैं, अपने काम पे जा सकते हैं, और यदि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो यू शुड फील योरसेल्फ एज हेल्दी एज एनीवन एल्स। और दूसरी बात मैं आपके इस माध्यम के थ्रू बताना चाहूँगा कि ये जो वैक्सीन अप्रूव की है हमारे रेगुलेटर्स ने, वो थोरो पूरी जांच पड़ताल के बाद एक ऑथेंटिक प्रोसीजर को फॉलो करके इनको एमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला है। और ये हमारे के लिए हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में हम एक बना पाए हैं जो कि हमें इस पेंडेमिक को रोकने में काफी हद तक कारगर साबित होगी। और जैसा हम जानते हैं कि इसको हमें फेस्ड मैनर में देना है। पहले 1 करोड़ ये हेल्थ वर्कर्स को जो कि डायरेक्ट पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं को उनको दी जाएगी, फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स जो 2 करोड़ है उनको दी जाएगी, और उसके बाद जो 50 साल से अधिक हैं और जिनको हाई रिस्क साथ में इन्वॉल्व है 27 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनको ये वैक्सीन दी जाएगी। तो आपके माध्यम के थ्रू ये बताना चाहूँगा कि हम सबको इसमें एक जन आंदोलन के जरिए इसमें भाग लेना चाहिए। इसके लिए एक सरकार ने बहुत ही ऑथेंटिक प्रोसीजर कोविन ऐप के थ्रू आपको वैक्सीन दी जाएगी। इसके लिए ड्राई रन एक तो आज हुआ है, एक 3 जनवरी को हुआ था। तो ड्राई रन के बाद ये टोटल सेटिस्फेक्शन हो चुकी है कि इसको कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, कैसे स्टोर करना है, किस वर्ग को कब देनी है। इसके लिए आपको कोविन में एक ऐप में रजिस्टर करने के बाद आपको टाइम, डेट, तिथि, साइट बताई जाएगी। आपको वहां जाना है, वहां पे पूरे तरीके से बहुत ही मेटिकुलसली हेल्थ केयर फैसिलिटीज को डेवलप किया गया है। वहां पे डॉक्टर्स हैं, सब कुछ है, और आपको वैक्सीन देने के बाद 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। तो आपको ये समझना है कि ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। थोड़े बहुत माइल्ड सिम्टम जैसे कि साइट ऑफ इंजेक्शन पे दर्द का होना, हल्का बुखार आना या शरीर में दर्द होना, ये सभी वैक्सीन के साथ होता ही है। तो हम अगर देखें, ये एक ऐसा हमारे पास कारगर उपाय है जिसके जरिए हम इस पेंडेमिक को कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आप आज का डेटा देखें तो भारत में जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो 20,000 पर डे से भी कम हो चुके हैं। तो दूसरी वेव ना आए, जैसे अब यूके के अंदर अब नया स्ट्रेन आ गया है तो वहां पे दोबारा से लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो गई है। तो हमें वो उस चीज से निकलने के लिए हमें सबको इसमें एक जन आंदोलन के तरीके से कोऑपरेट करते हुए कोऑपरेशन के साथ पार्टिसिपेट करना चाहिए और किसी भी प्रकार की अफवाह में नहीं आना चाहिए, क्योंकि मीडिया में देख रहे हैं कि इससे इम्पोर्टेंसी हो जाती है। ऐसी किसी भी साइंटिफिक डेटा में ऐसा नहीं मिला। इसमें पॉर्क है, ये भी सब निराधार है। यदि आपको कुछ भी डाउट है तो आप गवर्नमेंट की जो प्रूफ साइट है mohfw.gov.in इससे जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा हेल्प पर 1075
या 01123978046 से अपने डाउट्स को, यदि आपके मन में कुछ भी शंका है तो उसको क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा जीमेल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं ncov2019@gmail.com, ncov2019@gov.in। तो आपको गवर्नमेंट ऑथेंटिक साइट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहिए। जो अलग अलग ऑथेंटिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। बेहद अहम जानकारी आपने दी है और जो नंबर्स दिए हैं वो भी बेहद अहम है और उन्हीं से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। डॉक्टर निश्चल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से डॉक्टर रहेजा ने बताया कि जो वैक्सीनेशन का ये ड्राई रन है इसका अपना एक बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि पहले 4 राज्यों में किया गया, उसके बाद कुछ सिलेक्टेड विभिन्न जिलों के, देश भर के जिलों के सिलेक्टेड जगहों पर किया गया और पूरे देश भर में आज ये किया जा रहा है, कई जगह हो भी चुका है। और जिस तरह से ऑब्जर्वेशन की इन्होंने बात बताई है कि जिनका टीकाकरण किया जा रहा है उनका ऑब्जर्वेशन भी किया जा रहा है, तो ये ऑब्जर्वेशन है, ये किस किस चीज का किया जाता है, क्या क्या चीजें इसमें ध्यान में रखी जाती हैं और कितनी बड़ी ये तैयारी है, कितना जरूरी ये रहा और कितना बड़ा एक और हम ये कहेंगे कि एश्योरेंस है कि डायरेक्ट टीकाकरण नहीं किया जा रहा है, तमाम चीजों को देखकर किया जा रहा है। नहीं, ये बिल्कुल जरूरी है कि कोई भी वैक्सीन लगाने के बाद कुछ लोगों में जो सबसे ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन हम किसी भी वैक्सीन के बाद जो हम कंसिडर करते हैं वो है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। कई लोगों को एलर्जी होती है किस चीजों से, जो इवन एक सिंपल पैरासिटामोल टैबलेट से भी कुछ लोग एलर्जिक होते हैं, जिनमें अगर वो दवाई खाएं तो बहुत रिएक्ट कर सकता है। तो इस तरह के कोई साइड इफेक्ट, किसी में रेयर साइड इफेक्ट ऐसा ना हो जो कि लोगों को परेशानी हो, उसको से बचने के लिए उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, ताकि अगर किसी में बाई चांस ऐसा कोई दिक्कत आती है तो उसको तुरंत डील किया जा सके। तो मैं कहूंगा कि ये लोगों को एश्योरेंस बढ़ाने के लिए बहुत मददगार सिद्ध होगी कि वैक्सीन लगाकर उन्हें सिर्फ छोड़ नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उनको ऑब्जर्व करके पूरी तरह से तसल्ली करके कि भाई इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद ही घर भेजने की तैयारी की जा रही है। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है लोगों में कॉन्फिडेंस जगाने का इस वैक्सीन को। But at the same time, one doesn't have to be complacent. And in the meanwhile, Dr. Nischal, this one is for you. We need to continue with the COVID-19. The do's and don'ts, very, very important. There was also this sense in the last week or a few days in the midst of this new UK strain, the news that emerged and the numbers in UK escalating. Some numbers were found, the positive cases were found back home in India. But if you could just briefly explain the situation, pretty much by and large control. I'm specifically talking about the new variant that the positive cases that were found, and India acted very, very swiftly. So this is very important because, like I said, this virus can survive only inside our body. If we do not allow our body to be a home for these viruses, then of course they are not going to survive. So it's important that those who are traveling from such places and coming to India, it's their responsibility. It's responsibility of their near and dear ones to ensure that they take all the precautions which has been advised by the government. So as long as they are following all those precautions, that viral strain is not going to get a foothold in our country. So it's our responsibility to ensure that that does not happen, and we take adequate precaution. And against that particular strain, the COVID appropriate behavior is the only way of controlling that thing. So again, I will reinforce that you have to ensure that those who are coming from places like UK should isolate themselves, quarantine themselves as per the government guidelines, and their family members and others should be taking all COVID appropriate behavior seriously. बिल्कुल। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं पूर्णिया बिहार से, रंजन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी रंजन जी, पूछिए अपना सवाल। जी 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 मैडम, अपने टीवी सेट की आवाज आप जरा धीमी कर ले और फिर अपना सवाल पूछिए रंजन जी। जी मैडम, पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए, और दिल से सभी को धन्यवाद। हमारे डॉक्टर हैं और एंकर वगैरह है या फिर हमारे साइंटिस्ट, सभी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग बहुत मेहनत करके जो बनाए हैं, हमें गर्व है कि हम एक हिंदुस्तानी है, और हमें बहुत ज्यादा ये खुशी होगी कि कब तक हम अपना टीका लगवा सकते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर रहेजा, आप बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे, और इस तरह के जो रंजन जी ने सवाल किया, कई दर्शकों के सवाल आ रहे हैं कि किस तरह से हम अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, किस तरह से टीका हमारी रीच में आ सकता है, बेसिकली जो इनका मतलब है जो मैं समझ पा रही हूँ। डॉक्टर रहेजा, आप बताना चाहेंगे?
हमने इसके लिए ड्राई रन किया है 3rd को और एक 8 जनवरी को आज, और ये 14 जनवरी से रोल आउट करने की हमें उम्मीद है कि हम इसको 14 जनवरी से शुरू कर पाएंगे। और इसके लिए एक प्रायोरिटाइज किया जा रहा है कि कोविन ऐप में आपको अप्लाई करना है, उसके जरिए आपको समय बताया जाएगा, तारीख बताई जाएगी और किस जगह पे आपने आना है। इसके लिए आपका जो आईडी होना चाहिए, आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, या जो भी आपका फोटो आईडी है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और वही आईडी आपको साइट पे भी लाना है। तो आपको वहाँ पे जब आएंगे आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट रूम के अंदर इंजेक्शन दिया जाएगा और उसके बाद 30 मिनट से एक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा कि उसको इंश्योर करने के लिए यदि उसमें आपको माइल्ड सा भी कुछ रिएक्शन वगैरह होता है तो वहाँ पे पूरा एहतियात बरता जाएगा। बिल्कुल, तो रंजन कुमार जी, आपको जवाब मिल गया होगा, और ऐसे दर्शकों को भी, तमाम दर्शकों को जो जानना चाहते हैं कि किस तरह से वैक्सीन जो है वो लगवा सकते हैं। हमारे साथ नरेंद्र श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं फेसबुक से, और उन्होंने एक सवाल किया। उन्होंने कहा है, कैन आई मीट अ पर्सन हु इज जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19 एंड ही डजंट हैव एनी काइंड ऑफ सिम्टम्स लाइक कफ, फीवर, सो इज इट सेफ टू मीट हिम? डॉक्टर निश्चल। So again, it's important that you ensure that that person has been quarantined for at least 17 days, and after that, one can meet that person if he has no symptoms and he's perfectly fine. But like I said, it's always advisable to be extra cautious, and if you follow COVID appropriate behavior with while meeting that person, then that will be an extra layer of, you can say, protection. So yes, you can meet after 17 days if the person is asymptomatic, following all the COVID appropriate precautions. There are a lot of conflicting information coming from different quarters, not from doctors, but people in general. What is my safe window in terms of antibodies? I've been COVID positive, and then, some people say 3 months, some say 2 months. And well, some others believe that you've been COVID positive once, that's it. They cannot be a relapse. Dr. Nischal. It is approximately 6 months and can vary between 3 to 6 months or maybe a bit more. But because it's a new virus, we have to still wait and watch. But it is pertinent to see here that the vaccine will be given first dose, second dose after 4 weeks, and after 6 weeks, you will be getting the antibodies in your body against COVID-19. So, even though the vaccination will be given, is going on, we all must ensure and continue to follow the COVID appropriate behavior. Right, like Dr. Raheja. Yes, point taken. We need to wrap up the show. Dr. Nischal, you wanted to make a quick point here and then we'll wrap up. Yeah, so if somebody has recovered from COVID, the immunology of such patients is still a matter of debate. But what we feel that these patients are usually protected from COVID-19 because of both the antibody response as well as T-cell mediated immunity. However, like any other infectious disease, chances of reinfection is always possible. Reinfection doesn't mean that you are going to get a disease out of that. But if you get reinfected, you will not show disease. You may remain asymptomatic, but you can always transmit this disease to vulnerable people, especially those with comorbidities or those who have not acquired this infection in the past. So that's why we always encourage that even after recovering, you have to follow COVID-19 appropriate behavior to ensure that you don't infect others. बिल्कुल, बेहद अहम जानकारी हमारे डॉक्टर्स ने दी है, और समय हमारे पास सीमित है। हालांकि सवाल हमारे पास दर्शकों के आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल हमें आपसे इजाज़त लेनी होगी। तो डॉक्टर रहेजा, डॉक्टर निश्चल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और हमारे दर्शकों के ज्ञानवर्धन के लिए, उनके सवालों के जवाब के लिए। और आपसे भी कहना चाहेंगे कि प्रोग्राम हम ये रोज़ लेकर आते हैं, तो रोज़ आप हमें 3:30 बजे हमसे जुड़ सकते हैं। हाँ, शनिवार और रविवार को 2 बजे आप हमसे जुड़ सकते हैं। 1 घंटे का कार्यक्रम होता है, तो किसी तरह के भ्रम या अफवाह में आने की ज़रूरत नहीं है। ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, आप डीडी न्यूज़ देखते रहें और डॉक्टर स्पीक से जुड़े रहें। सकल? Absolutely, and with that it's time to wrap up. We'll be back tomorrow at 3:30, so you can come up with those questions that are in your mind related to COVID-19. Meanwhile, news continues on Doordarshan. Thank you for staying with us. Namaskar.
हर दिन बदलती दुनिया, हर पल बनती नई खबरें, खबरें जिनसे सरोकार है आपको, खबरें जो रोज जगाती हैं आपको। ताजा और वास्तविक समाचारों से दिन की सही शुरुआत डीडी न्यूज के साथ। नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। कोरोना से बचाव के उपाय। आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी रखें। हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं। 60% अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का प्रयोग करें। मास्क से चेहरे को ढक कर रखें। छींकते या खांसते समय नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। प्रयोग किए गए टिश्यू को तुरंत कूड़ेदान में डालें। सामाजिक आयोजनों और भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूर रहें। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 8वें दौर की वार्ता जारी। सरकार की ओर से लगातार किसानों की ओर से आपत्ति वाले मुद्दों को सुलझाने का आश्वासन। 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 736 जिलों में कोविड वैक्सीन के ड्राई रन का दूसरा चरण जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चेन्नई में हो रहे ड्राई रन का लिया जायजा। भारत की ओर से कम समय में वैक्सीन विकसित करने पर जताई खुशी। ब्रिटेन से हवाई सेवा आज से बहाल। एयर इंडिया का विमान यात्रियों को लेकर दिल्ली पहुंचा। कोरोना के नए स्ट्रेन के चलते पिछले महीने ब्रिटेन की फ्लाइट्स पर लगी थी रोक। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 3 प्रमुख सहायक निकायों की करेगा अध्यक्षता। निकायों में तालिबान प्रतिबंध समिति, आतंकवाद रोधी समिति और लीबिया प्रतिबंध समिति शामिल। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर जारी किया वीडियो। सत्ता के सुचारू और व्यवस्थित हस्तांतरण को बताया अपनी प्राथमिकता। कहा, संघर्षपूर्ण चुनावी मुकाबले के बाद अब लोगों के गुस्से को शांत करने का समय। और सिडनी टेस्ट में टीम इंडिया की वापसी। दूसरे दिन 2 विकेट पर बनाए 96 रन। शुभमन गिल ने जड़ा अर्धशतक। रविंद्र जडेजा की घातक गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 338 रन पर रोका। नमस्कार, समाचार अब विस्तार से। कृषि कानून को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच गतिरोध दूर करने के लिए 8वें दौर की वार्ता चल रही है। वार्ता से पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उम्मीद जताई कि वार्ता सकारात्मक माहौल में होगी और इसका समाधान निकलेगा। चर्चा के दौरान हर पक्ष को एक समाधान तक पहुंचने के लिए कदम उठाने होंगे। गौरतलब है कि इससे पूर्व की वार्ताओं में किसान संगठनों और सरकार के बीच कई मुद्दों पर आम सहमति बनी थी। तो आज भी सरकार और किसान संगठनों के बीच अहम दौर है वार्ता का। सरकार की कोशिश लगातार संवाद स्थापित करने की है। इससे पूर्व वार्ता में
कुछ मुद्दों पर आम सहमति बनी थी। और ताज़ा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अनुज यादव। अनुज, आज भी वार्ता का महत्वपूर्ण दौर है और सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि संवाद की जो स्थिति है, बातचीत के जो हालात हैं वो बने रहें। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर 2 बजे ये बैठक किसानों और सरकार के बीच में शुरू हुई है। 2 घंटे की जो वार्ता हुई है उसकी जो शुरुआत है उसमें केंद्रीय कृषि मंत्री ने बैठक की शुरुआत करते ही किसानों से अपील की थी कि आप देश भर के जो 86% जो किसान हैं उनका ध्यान में रखते जो है ने और उसे अपील की थी कि आप पूरे तीनों को कानून वापस लेने की जो मांग पड़े हुए हैं उस मांग को आप छोड़कर जो कानून के प्रावधान पर है उन पर बातचीत करें। इसके बाद किसान मंडल के अलग अलग नेता हैं, उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी हैं। कानून के अंदर जिन बातों को लेकर आशंकाएं हैं उन बातों को एक बार फिर से किसानों ने दोहराया है और उसके बाद जो कृषि सचिव हैं और इसके अलावा जो दूसरे तमाम कृषि मंत्रालय के अधिकारी हैं उन्होंने एक एक बात का वो जवाब दे रहे हैं। और इस बैठक का मकसद यही है, सरकार का मकसद यही है कि किसानों के मन में जो भी आशंकाएं कानूनों को लेकर हैं उनका एक एक सिलसिलेवार उनका जवाब दिया जाए, एक एक प्रावधान पर जो है चाहिए राहुल है जो सरकार बना हुआ है किसान बात किस तरीके किसानों को खासतौर से छोटे किसानों को हो सकता है, सरकार लगातार इसे बातों के प्रयास कर रही है। बिल्कुल। और एमएसपी का मुद्दा हो चाहे मंडियों की बात हो, लगातार इन कानूनों से जुड़े हर मुद्दे पर सरकार जागरूक करने की कोशिश कर रही है, जानकारी दे रही है, बातचीत के लिए बार बार बुला रही है, लेकिन कई दौर की वार्ताओं में देखा गया कि दूसरे पक्ष की ओर से वो अड़े रहे और मांग लगातार ये हो रही है कि आप कानून पूरी तरह से रद्द कर दें। व्यवहारिक नहीं लगता ये तरीका, और अगर जिन मुद्दों पर परेशानी है उन पर बातचीत से हल जरूर निकल सकता है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। सरकार बार बार घुरा चुकी है और किसानों के सामने इस बात को रख चुकी है कि तीनों कानूनों को पूरी तरीके से वापस लेना व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि इससे देश भर में एक जो बड़ा हित जुड़े हुए हैं। और किसानों ने अपनी बातें रखी कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर उनके मन में जो भ्रांतियां थी जी अनुज, सरकार इस बात को चुकी है कि एमसीआई नहीं होगा, मंडियां खत्म नहीं होंगी, वो हमेशा आगे भी भविष्य में जारी रहेगा। बिल्कुल। तो कानून से जुड़े हर मुद्दे पर चर्चा के लिए, संवाद के लिए सरकार तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और देश भर के कुल 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन का दूसरा चरण जारी है। ये ड्राई रन 736 जिलों में एक साथ किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज चेन्नई में तमाम ड्राई रन सेंटर्स का दौरा किया। इस कड़ी में वे सबसे पहले आज सुबह गवर्नमेंट जनरल अस्पताल का दौरा करने पहुंचे और वहां हो रहे ड्राई रन का अभ्यास का उन्होंने जायजा लिया। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने ओमन दुरार स्थित एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का भी दौरा किया। स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीनेशन से जुड़े तमाम सवालों का जवाब दिया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने खुशी जताई कि भारत एक ऐसा देश बन गया है जिसने बेहद कम समय में कोविड का वैक्सीन तैयार कर लिया है। In the shortest possible time, India has also done extremely well on the front of the development of vaccine. And right now, 2 of our vaccines have been given emergency use authorization. And we are in the process of ensuring that in the next few days or so, in the near future, we should be able to give these vaccines to our countrymen, starting with, of course, prioritizing those who are most at risk.
I know that a couple of months back, this Chennai was itself in a lot of trouble. All through we were worried about many states. Of course, Tamil Nadu was also one of them. But the way things were done in such a good manner in Tamil Nadu, and I was particularly impressed by the fact that 100% tests in Tamil Nadu were done by RT-PCR, and meticulous planning about testing, tracing, management, treatment, and while being treated in the hospital, so many good things have been happening. और पंजाब के मोहाली में कोविड टीकाकरण के संचालन के लिए आज दूसरा ड्राई रन किया गया। नोडल अधिकारी डॉक्टर संदीप ने कहा कि प्रशासन द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार 25 स्वयंसेवकों के साथ वैक्सीन ड्राई रन का आयोजन किया गया। As per the government of India की गाइडलाइंस ही वी आर ट्राइंग a dry run in our district first time। तो इसके लिए हमें जो ऊपर से एज पर ऑर्डर्स ऑफ सिविल सर्जन एडमिनिस्ट्रेशन हमने अपने 25 बेनिफिशियरी पहले से किए हुए हैं। उसके लिए हमने वी हैव एज पर द गाइडलाइंस अपने 3 रूम रखे हुए हैं। फर्स्ट इज वेटिंग रूम, वैक्सीनेशन रूम एंड ऑब्जर्वेशन रूम। तो अभी तक तो रिस्पांस बड़ा अच्छा आ रहा है। और कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन देश भर में कई टीकाकरण केंद्रों में किया गया और ऐसे ही दिल्ली स्थित LNJP अस्पताल के टीकाकरण केंद्र से देखिए हमारी संवाददाता मेघना देव की खास रिपोर्ट। किस तरीके का दिखेगा वैक्सीनेशन सेंटर जब आप वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगवाने के लिए आएंगे। कोविड-19 का टीकाकरण केंद्र है। यहाँ पर आपको मिलेंगे वैक्सीनेशन ऑफिसर 1। वैक्सीनेशन ऑफिसर 1 कोई भी सिविल डिफेंस के कर्मचारी, होमगार्ड या पुलिस के कर्मचारी हो सकते हैं जो आपका ID कार्ड चेक करेंगे और आपको अंदर जाने देंगे। अंदर आप सबसे पहले पहुंचेंगे वेटिंग एरिया में। वैक्सीन ऑफिसर नंबर 3 इज पोस्टेड हियर टू ऑब्जर्व सोशल डिस्टेंसिंग। ये जो एरिया है यहाँ पर आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराने वाले हैं। अब लिस्ट में चेक करेंगे, हमारी लिस्ट जो दी गई है हमें डिपार्टमेंट ने, उसमें चेक करेंगे इनका नाम कहाँ है और उसके बाद हमें इनको कोविन पोर्टल पे हम इनका नाम डालेंगे और सर्च करेंगे और उसके बाद हम इनका ID प्रूफ लेंगे कोई भी और ID प्रूफ से इनकी वेरिफिकेशन करेंगे। ये कुछ बॉक्सेस हैं जो यहाँ पर कोविड रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करने हैं। पहला बॉक्स है वेरिफिकेशन, क्या वेरिफिकेशन हो चुका है, एंट्री क्या कोविन पोर्टल में हो चुकी है, वैक्सीनेशन का समय वो भी मेंशन करना जरूरी है, 30 मिनट का ऑब्जर्वेशन पीरियड भी कंप्लीट हुआ है कि नहीं, ये सभी चीजें टिक होंगी। वैक्सीनेशन एरिया में आपको वैक्सीनेटिंग ऑफिसर्स मिलेंगी। वैक्सीनेशन देने से पहले उसको 4 संदेश देने हमें। पहले तो ये कि उसको ये वैक्सीन की पहली डोज लग रही है। दूसरी चीज़ ये कि उसको सेकेंड डोज लगने से पहले मोबाइल में SMS आ जाएगा, प्लेस एंड डेट। तीसरी चीज़ ये बतानी उसको आधे घंटे यहाँ ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और अगर उसको घर जाके भी कोई दिक्कत होती है तो पास के मेडिकल ऑफिसर, ANM या आशा वर्कर वो कांटेक्ट कर सकता है। चौथी चीज़ ये है कि वैक्सीनेशन लगने के बाद भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करते रहना है। सर, आपको क्या गाइडलाइंस दी गई हैं कि जब व्यक्ति वैक्सीन लगवा कर आ जाएगा उसके बाद की प्रक्रिया क्या है? उसके बाद हमें उनको यहाँ पर बैठाना है एंड आते ही सबसे पहले हमें उनका टाइम ऑफ अराइवल नोट करना है। अराइवल टाइम के बाद फिर हमें उन्हें देखना है कि उन्हें कोई भी साइड इफेक्ट्स लाइक एडवर्स इफेक्ट तो कुछ तो नहीं हो रही है। उसके बाद अगर कोई भी पेशेंट कहता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, देन वी हैव द इमरजेंसी रूम ओवर है, तो हमें इमीडिएटली उनको इमरजेंसी रूम में शिफ्ट करना है। मेडिकल ऑफिसर वगैरह हमारे सभी हैं यहाँ पर, तो उनके लिए वैक्सीन जब आएगी उससे पहले ये ड्राई रन्स किए जा रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आपको जब वैक्सीन लगेगी तो वो जो प्रक्रिया हो वो निर्बाध तरीके से चल सके और आपको सही तरीके से वैक्सीन लग सके। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं मेघना देव, DD न्यूज, नई दिल्ली। देश भर में हो रहा है कोविड-19 के टीके का पूर्वाभ्यास ड्राई रन। और बुलेटिन में फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के कूटनीतिक सलाहकार इमैनुअल बोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत हुई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि पूरी दुनिया में आज हिंदी भाषा की व्यापकता बढ़ी है और हिंदी का शब्दकोश सभी भाषाओं से अधिक व्यापक है। आज वर्धा स्थित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने छात्रों से आह्वान किया कि वे पूरी दुनिया में हिंदी के वैभव को विकसित करने की दिशा में काम करें। आज पूरी दुनिया में हिंदी का व्यापकता है। हिंदी में जो शब्दकोश है, मुझे लगता है दुनिया में कोई भाषा ऐसी नहीं है जिसमें इतना बड़ा शब्दकोश हो। और हमारे देश की आजादी के बाद हमारे संविधान की अनुसूची में जो चीजें हमको दी गई, भाषा संघ की भाषा में इसे याद दिलाना चाहता हूँ आपको पूरी दुनिया में हिंदी के वैभव को विकसित करना है, दिशाओं में जाना है, क्योंकि हिंदी के ब्रांड एम्बेसडर बनकर आज आप बाहर निकलेंगे, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, आप किसी भी व्यवसाय में होंगे, लेकिन हिंदी के लिए आपकी समर्पितता चाहिए। हिंदी तमाम विधाओं को लेकर के और सशक्त माध्यम से जितना स्थान पूरी दुनिया में बना सकती है, शायद ही कोई भाषा हो। और शिक्षा मंत्री ने इस मौके पर कहा कि इंजीनियरिंग और चिकित्सा की तरह कानून की शिक्षा भी विभिन्न भारतीय भाषाओं में देने की योजना तैयार कर ली गई है। ये जो कानून की शिक्षा है, उस कानून की शिक्षा भी विभिन्न हमारी भारतीय भाषाओं में होना चाहिए। और हमारे देश के जो मुख्य न्यायाधीश है, उनकी भी इच्छा है और हमने आगे ये योजना बनाई है कि निश्चित रूप में जहाँ हम इंजीनियरिंग की शिक्षा, जहाँ हम डॉक्टरी की शिक्षा अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में, अपनी मातृभाषा में, अपने देश की वो भारतीय भाषाओं में करेंगे, वहाँ हम कानून की शिक्षा को भी भारतीय भाषाओं में करने के लिए सक्षम हो सकेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट CS टीम से अगेंस्ट फर्म डिमांड FT की वस्तुओं की खरीद के लिए आज ऑनलाइन पोर्टल afd.csdindia.gov.in का उद्घाटन किया। इस ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत का उद्देश्य लगभग 45 लाख CST लाभार्थियों को ऑनलाइन खरीद के लिए प्रोत्साहित करना है, जिसमें सशस्त्र बलों के सेवारत और सेवानिवृत्त व्यक्ति और सिविल डिफेंस कर्मचारी शामिल हैं। सभी लाभार्थी इस पोर्टल के जरिए अगेंस्ट फर्म डिमांड श्रेणी में आने वाले उत्पाद जैसे कार, मोटरसाइकिल, वॉशिंग मशीन, टीवी और फ्रिज खरीद सकते हैं। और दिल्ली कैंट में चल रहे एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर में इस बार देश भर से केवल 1000 कैडेट्स ही हिस्सा ले पाएंगे। इनमें से कुछ कैडेट्स को जहां राजपथ परेड में शामिल होने का मौका मिलेगा, तो वहीं कैडेट्स एनसीसी की प्रधानमंत्री रैली में भी हिस्सा लेंगे। किस तरह की हैं तैयारियां और कैडेट्स कहां ले सकेंगे हिस्सा, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। एनसीसी का गणतंत्र दिवस शिविर 2021 शुरू हो चुका है। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार। आज सर, इस बार कुल कितने कैडेट इस शिविर में हिस्सा ले रहे हैं? अक्सर हमारी पार्टिसिपेशन में 2155 कैडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ये कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से थोड़ा स्केल डाउन किया गया है, तो इस बार हमारे 1000 कैडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें कितने छात्र और कितने छात्रा कैडेट हैं? 1000 की जो रिप्रेजेंटेशन है, हमारे सारे 17 डायरेक्टरेट्स मतलब मिला के 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो गर्ल कैडेट्स है 380 हैं और बैलेंस जो है बॉय कैडेट्स है। राजपथ पर हमेशा एक छात्रा कैडेटों का दल और इसके अलावा बैंड भी होता है। इस बार क्या देखने को मिलेगा राजपथ? बिल्कुल आपको मिलेगा देखने के लिए, लेकिन जैसे मैंने बताया है, ये पैंडेमिक की वजह से जो है स्ट्रेंथों को जो है जोड़ दिया गया है। बॉयज एंड गर्ल्स को इकट्ठा मार्च किया जाएगा और वहाँ पे 100 लड़के और 100 गर्ल स्टूडेंट्स दोनों का एक सेम कंटिंजेंट बनाया जाएगा। इस बार जो है बैंड के ऊपर रिस्ट्रिक्शन दी गई है, क्योंकि वो बताया गया है कि 18 साल के नीचे जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे हेल्थ के वजह से, कोविड के वजह से। इसी वजह से हमारे एनसीसी बैंड नहीं होंगे, लेकिन हमारा जो है आर्मी बैंड, जो वहाँ पे हमें पाइप्स एंड ब्रास जो बैंड हो, उनके साथ हमारे कैडेट्स मार्च करेंगे। क्या इस बार भी प्रधानमंत्री रैली होगी?
बिल्कुल होगी। वीएम रैली है 28 जनवरी को है और यहाँ पे हमारे करियप्पा परेड ग्राउंड में होगी। लेकिन इस बार अगेन एज ए मेंशन कि कोविड-19 की वजह से थोड़े से जो है कुछ चीज़ें जो है नहीं दिखाई जाएंगे, लेकिन रैली 100% होगी, मार्चिंग कंटेंशंस होगी, कल्चरल प्रोग्राम होएगा और सब कुछ होगा जैसे होता है, लेकिन थोड़ा स्केल डाउन किया जाएगा। तो ये थे लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आई जो बता रहे थे कि एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर में इस बार 1000 कैडेट हिस्सा ले रहे हैं जो देश भर से यहाँ पहुँचे हैं। कैमरामैन जयशंकर के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। रेलवे बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन और सीईओ सुनीत शर्मा ने डीडी न्यूज़ के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में नॉर्मल ट्रेनों के परिचालन में बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने कहा है कि साल 2021 में यात्री सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। हमारे संवाददाता राजेश राज के साथ खास बातचीत में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनीत शर्मा ने कहा कि 150 नई ट्रेन लाएंगे जो विदेश की बेहतर तकनीक से लैस होगी, जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट की झलक भी मिलेगी। भारतीय रेल प्रगति की पटरी पर दौड़ेगी। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ सुनीत शर्मा हैं। सबसे पहले सर डीडी न्यूज़ में बहुत स्वागत आपका। सर कहा जाता है कि भारतीय रेल जो है वो सपनों की रेल है और गाड़ी जब चलती है छुक छुक करती है तो लोगों के दिल भी धड़कते हैं। कोरोना काल में चुनौतियों के बीच बहुत काम हुआ, भारतीय रेल ने लोगों को गंतव्य तक पहुँचाया। 2021 में क्या चुनौतियां मानते हैं आप और क्या योजना है? पिछले वर्ष की तुलना में करीब करीब बराबर ट्रैफिक कैरी कर रहे हैं जो हमने पिछले साल कैरी किया था। ये एक भारतीय इकॉनमी के लिए बहुत अच्छा संदेश है और अब हमारी ये प्रयास है कि हम अपनी पैसेंजर सर्विसेज जो हैं अपने पैसेंजर्स के लिए उसको काफ़ी हद तक और बढ़ाएं। हमें उसको बढ़ाने के लिए हमें कुछ कैपेसिटी में भी परिवर्तन करना पड़ रहा है जिससे कि हम अपनी नॉर्मल ट्रेन सर्विसेज में और इजाफा कर सकें। भारतीय रेल अपने को आत्मनिर्भर अभियान जो है उसमें कहाँ पाता है? आत्मनिर्भर भारत का हमारा सबसे शीर्ष प्रतीक हमारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जो हम लोग बना रहे हैं, खुद अपने लोग हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं। इसके अलावा जो प्रोडक्शन में हमारे लगता है वो इंडिया में ही प्रोड्यूस होता है। हमारी कोशिश जारी है कि हम सारा सामान, सारी उनकी ट्रेनिंग, उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो हम अपने देश में रखें जिससे कि हमारे यहाँ हमारे उद्योग को और बढ़ावा मिले, तो हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा और देश की तरक्की और होगी। तो क्या ये माना जाए कि आपके कार्यकाल में हाई स्पीड या बुलेट जैसी जो ट्रेनें हैं उसको हम चलाने में भी कामयाब हो सकेंगे? हम लोगों ने वंदे भारत जो चालू की थी ट्रेन वो पूरा इंडिजिनस था, भारत में बना हुआ था, भारत का प्रोड्यूस है। इसके अलावा जो हम और ट्रेन सर्विसेज लाएंगे, 150 ट्रेनें जो हम लोग लाएंगे उनमें स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन उनका जो मैन्युफैक्चर रहेगा वो हमारे देश का होगा। हमारे इंजीनियर्स हैं वो उसको और डेवलप करेंगे। कोशिश हमारी यही है कि जो विदेश की बेस्ट टेक्नोलॉजी है वही हम लोगों ने अपने यहाँ भी रखी है और उसको इंडिया में डेवलप करने के लिए जो भी हमसे प्रयास होगा हम वो करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सर डीडी न्यूज़ से बातचीत के लिए। भारतीय रेल के नए सीईओ और चेयरमैन सुनीत शर्मा जी ने साफ तौर पर कहा कि वोकल फॉर लोकल हो या फिर आत्मनिर्भर भारत अभियान हो, तमाम चीज़ों को फोकस कर भारतीय रेल विदेशी टेक्निक को अडॉप्ट करके स्वनिर्मित चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेगा और ये आने वाले दिनों में भारतीय रेल प्रगति की ऊंचाइयों को और भी छुएगा। कैमरामैन एसएन मिश्रा के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो इस समाचार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।
कोविड-19 के चलते ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन का प्रयोग कर रहे हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन में सबसे सेफ एंड सिक्योर मोड है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग के 3 इंपॉर्टेंट टूल हैं। पहला टूल है NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसमें आपको किसी भी तरह का अतिरिक्त चार्ज नहीं देना पड़ता है। ये 24/7 अवेलेबल होता है। ये एकदम सिक्योर मोड में से एक माना जाता है। हालांकि इसमें जो पैसा ट्रांसफर करते हैं वो रियल टाइम में नहीं होता। इंटरनेट बैंकिंग का दूसरा टूल है IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। इसकी खासियत है कि आप इसमें रियल टाइम में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि इसमें ट्रांसफर लिमिट 2 लाख रुपए तक की होती है। तीसरा टूल है RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये काफी फास्ट और सिक्योर्ड मोड माना जाता है। इसमें आपको मिनिमम 2 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन करना होता है। जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, सिक्योर्ड मोड ऑफ पेमेंट यानी कि NEFT, RTGS या IMPS के माध्यम से ही करें ताकि आपका ट्रांजैक्शन एकदम सेफ एंड सिक्योर्ड रह सके। हर दिन बदलती दुनिया, हर पल बनती नई खबरें, खबरें जिनसे सरोकार है आपको, खबरें जो रोज जगाती हैं आपको। ताजा और वास्तविक समाचारों से दिन की सही शुरुआत DD न्यूज के साथ। नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे सिर्फ। Centre farmers engage in 8 rounds of talks today. Government has repeatedly assured the farmer leaders that it is committed to address their issues. Second nationwide COVID-19 vaccination mock drill begins in 736 districts across 33 states and union territories. Union Health Minister Dr. Harshvardhan reviews vaccination preparedness in Chennai, says India has fared well in developing vaccines in a short span. First flight carrying passengers from UK arrive in New Delhi as air services from UK restored. India restricted flights from UK last month due to new strain of coronavirus. More samples found positive for bird flu in Haryana, Gujarat and Rajasthan. Central teams deployed to visit affected states of Kerala, Haryana, Himachal Pradesh. States with no cases asked to keep visual on any unusual mortality amongst birds. US President Donald Trump releases a tweet video, says his focus is now on ensuring a smooth and orderly transfer of power, says it's time to cool the tempers after an intensely fought election. And in cricket, Shubham Gill and Ravindra Jadeja give India Day 2 honours in Sydney Test. India reached 96 for 2 at stumps. Australia scored 338 runs in first innings. Steve Smith hits 27th ton of the Test career. Namaskar and welcome. You're watching DD News. I'm Sakal Bhatt and the top story we're tracking at this hour. The centre is holding 8th round of talks with the representatives of farmer unions in New Delhi today to address the issues concerning them. The government has repeatedly assured the farmers' leaders that it is committed to address their issues and both sides need to take steps forward to arrive at an amicable solution. Tomar had reiterated that minimum support price MSP and the mandi system will continue like before. Here's a reaction from Union Agriculture Minister.
And in the ongoing Kharif marketing season 2021, the government continues to procure Kharif 2020-21 crops at MSP from farmers. As per existing MSP schemes, the centre has procured 521.48 lakh tons of paddy so far during this Kharif marketing season from nearly 68 lakh farmers at MSP, costing 98,457 crore rupees. Paddy procurement has reached 521.48 lakh tons till January 6th, up 27.13% from the year-ago period. The Kharif marketing season starts from October. About 67.89 lakh farmers have already been benefited from the ongoing KMS procurement operations with an MSP value of 98,456.80 crore rupees. And out of the total purchase of 521.48 lakh tons, Punjab has contributed 202.77 lakh tons. Well, the country is holding its second nationwide vaccination dry run for COVID-19 in 736 districts across 33 states and union territories today. Union Health Minister Dr. Harsh Vardhan in Tamil Nadu is in Tamil Nadu to oversee the dry run for COVID-19 vaccination today. The minister is personally reviewing the preparedness and overseeing the dry run operations at the scheduled sites. In Chennai, the Union Health Minister visited the site of the sessions at Government Oman Durar Hospital and Government General Hospital. In Oman Durar Hospital, a COVID exhibition was organized focusing on the precautions to be taken to prevent the spread of COVID-19. A yoga demonstration was also held as part of the program. In the meantime, Union Health Minister also held press conference to inform the countrymen about the progress being made at various levels. In the series addressing media in Chennai, Dr. Harsh Vardhan highlighted Prime Minister Modi-led central government's efforts in containing the COVID-19 in a shorter span of time. He added that India has done well by developing vaccines and will soon be rolling out COVID-19 vaccine. He also extolled that Tamil Nadu's 100% of the tests were conducted using RT-PCR. In the shortest possible time, India has also done extremely well on the front of the development of vaccine. And right now, 2 of our vaccines have been given emergency use authorization. And we are in the process of ensuring that in the next few days or so, in the near future, we should be able to give these vaccines to our countrymen, starting with, of course, prioritizing those who are most at risk. The nationwide vaccination dry run for COVID-19 was also held in Ahmedabad. We get you more visuals of the dry run mock drill across the country. Dry run for COVID-19 vaccination was held in Bangalore as well. In Assam, keeping the fighting spirit on against the pandemic, the state has also intensified its dry run process for COVID-19 vaccination. In the first phase, it was 2 districts only where dry run took place. All right, and now we're going to cut across live to this event where Union INP Minister Prakash Javadekar is releasing the annual calendar for the year 2021. और डायरी आप इसका विमोचन करेंगे तो मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस इवेंट्स पे लॉन्च करें। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमें इस विषय में थोड़ा संबोधित करें। हमारे पत्रकार बंधु लोग भी यहाँ पे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि सरकार का कैलेंडर
ये दीवार पर लटकता सालों से हम देख रहे हैं और हर ग्राम पंचायत तक जाता, बाकी सब जगह जाता। लेकिन तकनीक बदल गया। 120 करोड़ मोबाइल हुए। 120 करोड़ मोबाइल है, यानी कुछ लोगों के पास एक से ज़्यादा है, पकड़ के भी लगभग 70 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है। तो ये जो मोबाइल है उसमें अब लोग कैलेंडर देखने ही लगे। लेकिन उसमें केवल डेट और डे और मंथ इतना ही दिखता है, क्योंकि वो दुनिया के लिए है। ये जो सरकारी कैलेंडर बना है अभी डिजिटल, इसका फायदा ये है कि इसमें स्मार्टफोन पर iOS या एंड्रॉयड कुछ भी हो प्लेटफॉर्म, उस दोनों पे वो मिलता है। ये सबके लिए यूज करने के लिए फ्री है। पहले ये पंचायत तक पहुंचता था, हम इतना छापते थे, कागज खर्च करते थे। कागज भी पेड़ से ही मिलता है, तो पेड़ कटते थे। अब धीरे धीरे हमारे यहाँ ऑफिसेस में पेपरलेस गवर्नेंस आ गया, तो अब मेरे फाइल भी सारी ई फाइल के रूप में चलने लगी। तो उससे बहुत ज्यादा मात्रा में ये बचत हो रहा है कागज की। ये भी एक पर्यावरण पूरक काम है। और इसमें ये गवर्नमेंट के कैलेंडर में जो डिजिटल कैलेंडर है, ये आज पब्लिश हुआ है, या आज हिंदी और इंग्लिश में हुआ है, लेकिन अगले सप्ताह 15 तारीख से ये 11 भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। और फिर इस साल जनवरी का 15 जनवरी होगा, लेकिन अगले साल का उसी में मिलता जाएगा। तो फिर अब अलग से हर साल पब्लिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें मूल मुद्दा है कि हर महीने की थीम होगी। हर महीने के थीम के अनुसार उसका संदेश भी होगा। और जैसे जनवरी में का महीना थीम है एक्टिंग ईस्ट एंड एक्टिंग फास्ट, अटल बिहारी वाजपेयी जी के वो मंथ की पर्सनालिटी है। फरवरी की पर्सनालिटी रविंद्रनाथ टैगोर है और अन्नदाता सुखी भव, ये थीम है। मार्च में स्वामी विवेकानंद है और नारी टू नारायणी, ये थीम है। ऐसे 12 महीनों के 12 थीम्स है। इसकी भी जानकारी होगी। और साथ ही साथ जो सरकार ने क्रांतिकारी बदलाव किए हैं, 100 से ज़्यादा ऐसे काम किए हैं कि जिससे भारत में परिवर्तन आया है, उन 100 लगभग कार्यक्रमों के हर महीने में कब लॉन्च हुए उसकी तारीख भी है। तो बाकी भी सरकारी सभी कार्यक्रमों की और सभी सरकारी टाइम टेबल की जानकारी होगी। इसमें सरकारी लोग अपने अपने आपस के ग्रुप करके भी कर सकते हैं अपना टाइम टेबल, बाकी सब मैसेज, वैसे लोग भी कर सकते हैं। तो सबके लिए एक सुविधाजनक ऐसा डिजिटल कैलेंडर आज बना है। इसमें नोट्स भी लिख पाएंगे। यानी जो डिजिटल कैलेंडर हमें
फोन में मिलता है उससे ज़्यादा उपयोगी, ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा सुगम, ऐसा ये कैलेंडर रहेगा। मुझे आज ये करने में बहुत खुशी हो रही है कि ये डिजिटल कैलेंडर आज शुरू हो रहा है। तो मैं हमारे सारे अधिकारी जिन्होंने इस पर मेहनत करके ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को जो पूरा किया है, उसके लिए मैं उनको सबको बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। आई इनवाइट डीजी बीओसी फॉर वोट ऑफ थैंक्स। माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री, माननीय सचिव सूचना और प्रसारण, प्रधान महानिदेशक पत्र सूचना कार्यालय और मंत्रालय के उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारी, हमारे मीडिया एककों के सभी वरिष्ठ अधिकारी, मीडिया के उपस्थित सारे मित्र, आज ये मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई कि मंत्री जी ने समय निकालकर और ये कैलेंडर जो डिजिटल रूप में आज आया है, कैलेंडर और डायरी एक कंबाइंड है, उसके लिए समय निकाला और उन्होंने इसका विमोचन किया। मैं अपने तहे हृदय से मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। सचिव महोदय जिन्होंने समय निकाला अपने काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम से और जिनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहा इस डिजिटल डायरी कैलेंडर ऐप को तैयार करने में, उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और अपना आभार व्यक्त करता हूं। हमारे सभी सहयोगी जो मंत्रालय में रहे हैं, अपर सचिव, संयुक्त सचिव और हमारे माध्यम एककों के जो हमारे कलीग रहे हैं, उन सबका समर्थन मिला है, सबको मैं धन्यवाद देता हूं। और आज इस खास मौके पे जो मीडिया से हमारे मित्र आए हैं इस डिजिटल डायरी कैलेंडर ऐप को के विमोचन को कवर करने और इसको लोकप्रिय बनाने के लिए मैं उन सबका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और इस नेशनल मीडिया सेंटर से जुड़े जितने हमारे सहयोगी हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारी मदद की, हमें सहयोग दिया, उन सबका आभार। धन्यवाद सर। धन्यवाद। ये डाउनलोड करने के लिए GOI कैलेंडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI कैलेंडर, ये केवल ऐप डाउनलोड करना है तो आपके फ़ोन में ये नया कैलेंडर आपके पास डिजिटल आ जाएगा। क्या बताए? क्या? GOI कैलेंडर। धन्यवाद सर। इसमें सवाल क्या होता है कैलेंडर पे? फ्रेंड्स, वी हैव अरेंज्ड ए कप ऑफ टी फॉर यू। कैलेंडर देखना होता है कैफेटेरिया पे। हाँ जी, हाँ, ऐसा है। हर बार RTI जैसा क्वेश्चन मत पूछो। जी जी, धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज ज्वाइन फॉर ए कप ऑफ टी ऑन द फोर्थ फ्लोर। नहीं, वो बताएंगे, लेकिन अभी मेरे पास जानकारी नहीं है, मिलेगी। मैं आपका सम्मान करता हूँ। अभी आप सब चाय के लिए हमें ज्वाइन करें। Live visuals from National Media Center, Union Minister Prakash Javadekar officially launching or releasing the annual digital calendar for the year 2021. Talking about the calendar, he said that it can be actually available on your phones by downloading the GOI calendar download. That's an application that you have to download. And what is one of the significant features of the calendar, the Digital Government of India calendar, is that it's going to be soon released in 11 different languages. There are going to be 12 different themes across 1 year. Every month there's going to be a personality of the month and the theme of the month. And he also talked about the fact that this calendar is going to showcase some of the important policies of the government of India, which have essentially been the instrument of change in governance. So for more on that calendar, you can download that app, GOI calendar. Okay, and now let's move on and talk about the other big story of the day.
on this news broadcast, talking about the dry run, the second phase. A massive dry run exercise was conducted this morning to gear up and be prepared ahead of the vaccine rollout. My colleague Meghna Dev brings you this ground report from the vaccination center at LNJP Hospital in National Capital. How are you going to be vaccinated? How will the vaccination center look like? We are going to show you in this report. We are here at a vaccination center at the LNJP Hospital in New Delhi, and this vaccination center is currently undergoing a dry run. So it is a COVID-19 vaccination entry. This is the vaccination officer 1, and he will be facilitating your entry inside the vaccination center. And you will have to show your ID to the vaccination officer number 1. And after this, pre-vaccination waiting area wherein people are going to wait, the beneficiaries are going to wait before they get vaccinated. Vaccination officer number 3 is posted here to observe